वेलकम टू आवर महाराष्ट्र फ्यूचर ऑर्बिट यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रिलेटेड विद यूनिट एंड मेजरमेंट्स अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू और यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। number of videos are there, but they are discussing about only the short MCQs type questions and related with single line questions. In this video we are discussing about complete 5-mark sentence or 5-mark question and about their answers. Now if you are facing continuous assessment exam or mid semester exam or university exam, at that time in unit and measurement chapter, these are the few important questions, and in these questions we discussed previously all questions, or we overlook about all questions, and then we one by one we discuss about their answers. Now first question is define physical quantity, fundamental quantity, supplementary and derived quantity with their example. Now in this question आपको मेंशन क्या करना है, उस क्वांटिटी की डेफिनेशन। सिंपली फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में जस्ट मेंशन दैट द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एनी मेजरिंग डिवाइस नोन एज अ फिजिकल क्वांटिटी. Physical quantity is classified or divided into 3 types: fundamental quantity, supplementary quantity and derived quantity. Now one by one mention the definition of fundamental quantity, supplementary quantity and derived quantity. In the definition of fundamental quantity, you can write that the quantity which are completely independent for their measurements, known as a fundamental quantity. Now in question they are mentioning that explain the quantity with their examples. So in this case just write down 2 to 3 examples of that specific quantity. Now you know the all fundamental quantities, that is length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. So out of that mention any 2 to 3 quantities name, length, comma, mass, comma, time, and whatever you want to mention that. Now secondary definition is supplementary. Supplementary quantity is also a fundamental quantity or the quantity which is independent for their measurement but not included in previous 7 fundamental quantities. These quantities are known as supplementary quantity. उनके इसमें 2 ही क्वांटिटीज है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सो एग्जांपल में हमें दोनों के नाम लिखने हैं, वहां पे हमें कोई चॉइस ही नहीं है. जैसे फंडामेंटल में आउट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी वी कैन मेंशन एनी 2 to 3, बट सप्लीमेंट्री में टोटल सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 है तो हमें एज इट इज वो मेंशन करने हैं. एंड एट द लास्ट डिराइव्ड क्वांटिटी में आपको डेफिनेशन मेंशन करनी है, द क्वांटिटी विच आर डिपेंड्स अपॉन आइदर 1 or more than 1 fundamental quantity for their measurements, known as a derived quantity. And you have lot of variety or lot of choice to give the example of derived quantity. So इस तरीके का एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपके सामने बन सकता है, जिसमें आपको डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड derived क्वांटिटी विद देयर एग्जांपल. अब यहाँ पे आपको यूनिट, उनका सिंबल ये डीपली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, उन सभी क्वांटिटीज के नाम लिखने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ 2 to 3 लाइन में डिस्क्रिप्शन देना है, एग्जांपल डिटेल में नोट करनी है एंड उनके 2 3 नाम एग्जांपल्स के लिखने हैं, अगर आपके सामने ये 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा गया है तो. ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो बहुत नेसेसिटी है और अक्सर इस बारे में क्वेश्चन आता है कि राइट अ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड सिंबल. अब यहां पे आपको उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटी, देयर यूनिट्स एंड देयर सिंबल ये सिक्वेंटली पूछा है. अब फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है तो ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको वो टेबल ही बनाना है आपको. तो आप क्या कीजिए, डायरेक्टली इन आंसर जस्ट मेक अ टेबल, इन दैट मेक 4 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, second column name of a fundamental quantity, in that mention sequentially 1 to 7, that is length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. In front of them mention their units. The unit of length is meter, unit of mass is kilogram, unit of your time is second, then unit of your electric current ampere, unit of temperature that is Kelvin, unit of amount of substance that is mole. अब यहाँ पे यूनिट में आपको पूरा MOLE मेंशन करना है, कंप्लीट नेम में आपको मेंशन करना है. एंड एट द लास्ट अमाउंट लुमिनस इंटेंसिटी में आप मेंशन कैंडेला कीजिए. राइट,
नाउ एट द लास्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम जो है, पहला कॉलम हमने सीरियल नंबर का बनाया, दूसरा नेम ऑफ क्वांटिटी का बनाया, तीसरा हमने यूनिट का बनाया, फोर्थ में आपको सिंबल मेंशन करने हैं। सिंबल में मीटर का स्मॉल एम आप लीजिए, जो आपकी मास है उसमें किलोग्राम का यूनिट स्मॉल केजी लिख लीजिए, टाइम के लिए स्मॉल एस सेकंड के लिख लीजिए। ये कई बार कैंडिडेट SEC सेकंड लिख देते हैं शॉर्ट में, तो सिंपल आपको मेंशन करना है सिंबल में स्मॉल एस। देन टेम्परेचर का आप कैपिटल के बना दीजिए, दैट इज केल्विन, एंड एम्पियर के लिए आपको कैपिटल A। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट मोल है वो वर्ड है MOLE, बट यूनिट मोल लिखते वक्त सिर्फ MOL आपको मेंशन करना है। एंड एट द रेट जो कैंडेला है उसका स्मॉल c स्मॉल d। उसी के नीचे अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है विथ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सो सेम टेबल अगेन रिपीट करो, सीरियल नंबर, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, यूनिट एंड देयर सिंबल। सीरियल नंबर में 1 and 2, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन, स्टे रेडियन, एंड सिंबल में आपको RAD एंड SR स्मॉल में लिखना है। ओके, सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन राइट अ फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड सिंबल, तो प्रोबेबली आपको ये टेबल में नेम ऑफ क्वांटिटी, नेम ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल वो डीपली मेंशन करना है, पूरे 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री 9 क्वांटिटीज का। फिर आपके सामने क्वेश्चन हो सकता है राइट एनी 10 डिराइव्ड क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड सिंबल। ओके, सेम टेबल आपको बनाना है, बट आपके सामने नंबर ऑफ ऑप्शंस है यहाँ पे। अभी डिराइव्ड क्वांटिटी रिमेनिंग, इफ यू आर रिमूविंग द 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री, then remaining all the quantities are the examples of derived quantity. So write any 10 derived quantities. Even at the time of practice in class, you are already making the table of 25 derived quantities with their units and symbol. Out of that, prepare at least 10 quantity with perfect their unit and symbol. And one by one mention that, as like example point of view, you can mention that number 1, velocity in unit meter per second, and symbol में m upon s. In the same way, acceleration meter per second square m upon s square, area meter square m square, same volume meter cube m cube, and density mass upon volume, so kilogram upon meter cube, force, work, power, energy, number of variety is there in the derived quantity. मेनी टाइम सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो कह रहा हूं आप कंसंट्रेशन के साथ सुन लीजिए, कि कभी कभी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि राइट फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड सिंबल। इन केस में आप आउट ऑफ 7 एटलीस्ट मिनिमम 5 फंडामेंटल क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड विद देयर सिंबल लिख लीजिए। साइमल्टेनियसली 5 डिराइव्ड क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड सिंबल आप मेंशन कीजिए। यानी एक यूनिट, सिंबल एंड उसका अगर आप प्रॉपर नेम ऑफ उस क्वांटिटी आप मेंशन करते हैं तो आपको हाफ मार्क कंसीडर किया जाता है। इसलिए 5 मार्क का क्वेश्चन में हमें ये 10 क्वांटिटीज लिखना नेसेसरी है। अगर आपको फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री पूछते तो 9 को ही आपका कंसिडरेशन होगा, बट डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल अगर मिक्स पूछा तो आपको 5 फंडामेंटल लिखने हैं, 5 डिराइव्ड क्वांटिटी लिखने हैं, और वो भी सेपरेट टेबल बना के, फंडामेंटल क्वांटिटी के अलग से 5 ऊपर लिखो, नीचे डिराइव्ड क्वांटिटी सेकंड टेबल बना के वो मेंशन कर दो। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप गौर कीजिए और उसको आप प्रिपेयर कीजिए डीपली विद फुल फोकस। ओके, एंड ऑलरेडी आपको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो टेबल आराम से बना सकते हो। उसके बाद एक प्रोबेबल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, डिफाइन यूनिट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। वी नो दैट unit is nothing but the reference standard used for the measurements, right? That is called as unit. There are number of definitions, but one of the best definition is that the reference standard used for measurements known as a unit, and give the characteristics of a good unit. So we can mention the each and every characteristics individually. That is, unit must be invariable, unit must be well defined, unit must be universally accepted, unit must be easily available, unit must be reproducible. Okay, so all these are the good characteristics of unit. If you are able to explain each and every characteristic either 1 to 2 sentences, what is meant by well defined, what is meant by invariable, what is meant by universally accepted, so your answer is more effective and more impressive. So go through in that way also.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एरर एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरर की डेफिनेशन क्या है, एरर के टाइप्स क्या क्या है। अब एरर्स के लिए हमें डेफिनेशन में हम नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ डेफिनेशंस बोलते हैं। हम एरर में कह सकते हैं एरर इज नथिंग बट लिमिटेशन ऑफ अ मेजरिंग डिवाइस एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ओके। या फिर जो सबसे आसान डेफिनेशन है, एरर इज डिफाइंड एज एक्चुअल लेंथ माइनस योर मेजर्ड लेंथ, और इट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एक्चुअल लेंथ एंड मेजर्ड लेंथ नोन एज अ एरर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो जो आपको आसान लगे वो आप एरर डेफिनेशन मेंशन कीजिए। टाइप्स ऑफ एरर में हमें नोन है, एरर आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। सो योर इंस्ट्रूमेंटल एरर, योर सिस्टमैटिक एरर एंड योर एक्सीडेंटल एरर। सो फर्स्ट आप डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद टाइप्स में उनके नाम लिख लीजिए एंड देन ईच एंड एवरी टाइप का डीपली एक्सप्लेनेशन दीजिए। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, द एरर ऑकर ड्यू टू द फॉल्टी डिवाइस और फॉल्टी मेजरमेंट डिवाइस नोन एज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर। देन योर second is systematic error. If the assembly or setting of the measuring device is faulty, then the occurred error is known as systematic error. And at the time of accidental error, you can mention that the error which occurred due to the sudden change in surrounding atmosphere known as a accidental error or atmospheric error. Even इसी को अलग अलग नाम दिया, जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम परमानेंट एरर कह सकते हैं या परमानेंट एरर कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर को ही हम परसिस्टेंट एरर कहते हैं एंड एक्सीडेंटल एरर को ही हम एनवायरमेंटल एरर भी कहते हैं। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ ऑन एस्टिमेशन ऑफ एरर। अभी ये एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी भी आप प्रॉपरली डीपली तैयारी कीजिए। साइमल्टेनियसली जो एस्टिमेशन ऑफ एरर है ये मायने इसलिए रखता है कि हर यूनिट एंड मेजरमेंट में जो न्यूमेरिकल है, to calculate the percentage by calculate the percentage error if certain values are given to you, then उस क्वेश्चन के लिए या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए एस्टिमेशन एरर के 5 स्टेप्स आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको सिक्वेंटली ये 5 एस्टिमेशन स्टेप्स नेसेसरी होना जरूरी है। सो थ्योरेटिकली इफ अ क्वेश्चन इज अराइजेस इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एस्टिमेशन ऑफ एरर, देन यू हैव टू मेंशन वन बाय वन द स्टेप्स। सो डिफाइन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर में आप फॉर्मूला बोल दीजिए, राइट। सॉरी, फर्स्ट एस्टिमेशन स्टेप इज टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। इन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू वी आर टेक द सम ऑफ ऑल गिवन रीडिंग्स एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ रीडिंग्स। सेकंड, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज द पाथ इन डिफरेंस इन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड एक्चुअल रीडिंग। उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके जितने भी आपको डिफरेंसेस आ जाएंगे, ऑल दीज आर कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। थर्ड इज एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो जैसे हमने फर्स्ट इसमें नंबर ऑफ रीडिंग्स का एवरेज निकाला था, वैसे आपको एब्सोल्यूट एरर का एवरेज निकालना है थर्ड स्टेप में, एवरेज एब्सोल्यूट एरर में। फोर्थ स्टेज इज रिलेटिव एरर एंड रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज वैल्यू। सो योर थर्ड स्टेप डिवाइडेड बाय फर्स्ट स्टेप is equal to your fourth step, that is relative error is equals to average absolute error divided by average value. And at the last fifth your estimation step is to calculate the percentage error, and it is nothing but 100 multiplied by your relative error. So ये 5 formulas and ये steps, इनके definitions आपको permanently याद ही होनी चाहिए ताकि उसी के बल पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। और कंपल्सरी हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में आपको कम से कम एटलीस्ट एक न्यूमेरिकल आता ही आता है परसेंटेज एरर का, राइट। तो परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस भी कई बार हम क्लास में ऑलरेडी ले चुके होते हैं या आप लोगों ने करी होगी। सो आपको न्यूमेरिकल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ऊपर साइमल्टेनियसली कभी कभार, यानी बहुत रेयरली, आजकल उतना ज्यादा ये नहीं है, बट एक डायमेंशनल फॉर्मूला का सेफ्टी पर्पस कि आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज के नाम दिए जाते हैं और उन क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखने के लिए कहा जाता है। सो ऐसे एक नंबर ऑफ प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज है कि जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, या इस तरीके के क्वेश्चन यूनिट एंड मेजरमेंट इस टॉपिक पे आपको पूछे जा सकते हैं। वैसे आंसर आपको कैसे लिखना, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। अब इनमें से अगर आप फोकस करते हैं, मान लो फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड सिंबल और डिराइव्ड क्वांटिटी विद देयर यूनिट एंड सिंबल, तो भी वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। या एरर के ऊपर आप
फोकस कर सकते हैं, एरर, टाइप्स ऑफ एरर एंड एस्टिमेशन एरर, एंड साइमल्टेनियसली न्यूमेरिकल्स को भी आप फोकस कर सकते हो। तो अगर आप एक प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन का, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने हैं आपके सामने, 7 to 8 क्वेश्चंस है, 7 to 8 क्वेश्चंस के प्रॉपर आप स्टेप बाय स्टेप आंसर लिख लीजिए। मॉडल आंसर पेपर आप अपने फैकल्टी से चेक करवा लीजिए, एंड उसमें अगर कुछ करेक्शन एडिशन है तो वो मेंशन करके फाइनलाइज करके आपको एग्जाम में आप पुट ऑफ कर सकते हैं। या आपको जो बेटर लगता है, आप एक मॉडल आंसर, जैसे अभी मैंने हर एक क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप आपको मेंशन किया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो आप हर एक आंसर, क्वेश्चन का आंसर एक मॉडल आंसर बनाए, उसकी प्रिपेयर करें, और जो भी आपके सामने एग्जाम्स आती है उन एग्जाम को आप फेस करें। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। इसी के लिए